Good morning, dear students. How are you all? Might be fine. Now, today we are going to see some more factors that affect the climatic conditions of a place. Yes, we had already discussed the distance from the equator. Now we are going to discuss some more factors like altitude, that is distance from the sea level, and humidity and rainfall, and even the sea level conditions, even the winds that flow, they all affect the climatic conditions of a place. Now we start with the factor, the altitude. बच्चे अगर आप यहाँ पर देखते हो altitude means the height, right? Higher elevation, आप लोगों को पता है हमेशा थिनर और लेस एयर होती है. जैसे जैसे हम लोग ऊपर हाइट्स पे जाते हैं तो वहाँ पर एयर का जो प्रेशर होता है दैट टेंड्स टू रिड्यूस, राइट. वहाँ पर एयर लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाते हैं. देयरफॉर लेस एयर टू होल्ड द हीट मेक्स इट कोल्डर. इसीलिए वो रीजन्स बहुत कोल्ड होते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे यू शुड रिमेंबर वन रूल. हायर द एलिवेशन द कूलर इज़ द टेम्परेचर. जितना ज़्यादा हायर एलिवेशन होगा, जितना ज़्यादा हायर फ्रॉम अ सी लेवल एक एरिया होगा, उतना ज़्यादा एरिया वो कूलर होगा. ना अगर हम लोग गंगानगर से ट्रैवल करते हैं और हम लोग शिमला की तरफ जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर जो टेम्परेचर है दैट इज़ क्वाइट हॉट. When you reach Chandigarh and between Chandigarh, the weather is quite moderate near to the hills. And finally, when you move ahead towards Shimla, the temperature is quite cooler. Why it is cooler? Because height from the sea level affects the area. Now, but just see to it. Higher the elevation, the cooler the temperature. Similarly, when you climb a mountain, the temperature gets cooler at the top, while at the bottom on the land surface हमारा जो मतलब एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत वार्मर होता है. ठीक है ना? आई होप द एलिवेशन इज क्वाइट क्लियर. सो यू शुड रिमेंबर व्हाट इज एलिवेशन. इट इज़ द altitude or the distance of a place from the sea level. I hope this point is clear. Now we move to the detail of this. Now but just see to it. We know that air becomes cooler as we go higher up. Therefore the temperature decreases with increase in height. अगर आप इस पिक्चर में देख रहे हो तो ये सी लेवल है. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ हाइट्स के ऊपर जाते हैं, हिल्स के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे जो एयर है वो बहुत कूलर हो जाती है. इज दैट क्लियर? इट इज़ अ कूलर एयर इन द हिल्स दैन इन द प्लेस. मतलब एयर जो होती है वो ज़्यादा कूलर होती है हिल्स के अंदर दैन इन द प्लेन्स. प्लेन्स में एयर इज़ नॉट दैट कूलर. नाउ the peaks of high mountains are covered with snow throughout the year because the temperature there is lower than in the plains. आपको पता है जो टेम्परेचर होता है वो हिल्स में बहुत लो होता है, जबकि जो प्लेन्स है जैसे कि गंगानगर इज़ अ प्लेन, शिमला इज़ अ हिल्स, तो यहाँ का अभी आप टेम्परेचर अगर वेरी करोगे तो टेम्परेचर गंगानगर में बहुत हाई होगा, जबकि शिमला के अंदर टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो, राइट. Now, bache, you should be remembering from it, even if the different places are at the same distance from the equator, their climate will vary. अगर कोई different places हैं वो equator से same distance पे हैं, लेकिन फिर भी उनका temperature अलग अलग होगा, only because these places are at different heights, right? So, height of a place is particularly the altitude. The more the altitude, cooler is the climate there. I hope this point is very much clear now. Now, we move to the next slide. Humidity. What is humidity? Humidity is the amount of water vapor present in the air. बच्चे you should remember, the higher the temperature, जितना ज़्यादा temperature होगा, the more water vapor it can hold. Is that clear? ज़्यादा टेम्परेचर वाली जगहें
ज़्यादा यहाँ पर वाटर वेपर को होल्ड कर रख सकती हैं एंड वार्म एयर कैन एब्जॉर्ब मच मोर वाटर वेपर दैन द कूल एयर. Now बच्चे, let's see the humidity and rainfall once again. Amount of water vapor present in the air को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी. जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया है, अगर एक प्लेस बहुत ज़्यादा नियरनेस है उसकी सी के पास तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी. आई जस्ट रिपीटेड, ह्यूमिडिटी ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन द प्रॉक्सिमिटी टू द सी, nearness to the sea. Now the places where there is sea are more humid than the places away from the sea. जो भी places sea level के पास हैं, sea के पास हैं, वो बहुत humid होती हैं, और जो places land area के अंदर हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा humidity नहीं होती. Now बच्चे, the winds blowing from the sea are full of moisture. आपको पता है मॉइस्चर तो होगा ही ऑटोमेटिकली, बिकॉज कहाँ से वो लोग पानी को इवेपोरेट कर अपने अंदर ले लेते हैं? फ्रॉम द सी इटसेल्फ. एंड दे मेक द क्लाइमेट ऑफ द एरियाज नियर द सी मोर ह्यूमिड. ये जो मॉइस्चर होता है ना, ये इन एरियाज़ के अंदर इन क्लाइमेट को ना बहुत ज़्यादा क्या कर देते हैं? ह्यूमिड बना देते हैं. लेकिन सम प्लेसेस रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, अदर्स रिमेन ड्राई फॉर लॉन्ग टाइम. So areas receiving more rainfall are much cooler than those with less or no rainfall. Is that clear? So humidity and rainfall automatically affects the climatic conditions. Sea के पास वाली जगहें ज़्यादा humid होंगी. Is that clear? Even they will also witness more rainfall nearby. Is that clear? सो जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होगी वो एरियाज़ भी ज़्यादा कूलर होंगे, और जहाँ पे कम रेनफॉल होगी वो एरियाज़ ड्राई कहलाए जाएंगे. नाउ बच्चे, लेट्स स्टार्ट विद द विंड्स. यू नो द विंड्स दैट ब्लो, ये भी हमारे क्लाइमेट को, टेम्परेचर को और रेनफॉल ऑफ अ प्लेस को बहुत इफेक्ट करती हैं. द डायरेक्शन ऑफ विंड्स इफेक्ट द टेम्परेचर एंड रेनफॉल ऑफ अ प्लेस. द विंड्स मे बी हॉट, they may be cool or full of moisture depending on where they are coming from. Winds blowing from the cold region. अब अगर कोई भी winds है वो cold region में बह रही है. Is that clear? It's flowing in the cold region. Climate of that region will be cold. अब अच्छे गर्मियों का मौसम है, हम कहते हैं लू, LOO, लू चलना. Whenever the loo blows, you know, the area is quite hot. So गंगानगर में इस समय it is quite hot. Why? Only because of this loo going on. It is the warm winds going on. And the monsoon winds blowing from the oceans and the seas bring what? Rain. Do you remember rain कौन लेकर आता है? It is the monsoon winds going on. जितनी भी मानसून विंड्स हैं जो कि सी से चलती हैं या सी से फ्लो होकर ये हमारे धीरे धीरे एरियाज़ के पास आती हैं, दे टेंड टू ब्रिंग रेन. सो यू शुड रिमेंबर द विंड्स प्रिवेलिंग, डायरेक्शन ऑफ द विंड्स एंड द एयर मूवमेंट इफेक्ट्स द वेदर कंडीशंस. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. सो ऑलवेज रिमेंबर winds affect the climate, temperature as well as the rainfall of a place. Now bacha, let's see the distance from the sea. Distance from the sea also affects a lot of effect on the climate. Now see to it, the sea exerts a moderating influence on the climate of the place is located away from the sea. अगर कोई भी प्लेस सी से बहुत दूर है तो वहाँ पर इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आएगा, एरिया इतना ज़्यादा ह्यूमिड नहीं होगा. लेकिन अगर एक एरिया सी के बहुत पास है देन देयर विल बी अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन दैट एरिया ड्यू टू द सी लेवल, राइट? बिकॉज दैट एरिया इज़ नियर टू द सी, इसमें ज़्यादा रेनफॉल होगी, वो एरिया ज़्यादा ह्यूमिड भी रहेगा. यू शुड रिमेंबर टू थिंग्स बच्चे. The sea water heats up and cools down more slowly than the land. जल्दी गर्म भी हो जाता है और कूल डाउन भी बहुत स्लो होता है लैंड से. ओके बच्चे, नाउ लेट्स सी टू इट वंस अगेन. द प्लेसेस विच आर अवे फ्रॉम द सी, जो भी प्लेसेस सी से बहुत दूर होती हैं, इज दैट क्लियर? जैसे कि राजस्थान हो गया, राजस्थान इज़ नॉट नियर द सी,
तो यहाँ पर वेदर कितना रहता है, बहुत ही ज़्यादा हॉट रहता है वेदर, इज़ दैट क्लियर। लेकिन यहाँ पर जो विंटर्स होंगी वो बहुत कोल्डर होंगी, राइट। लेकिन जो प्लेसेस यहाँ पर नियर होते हैं सी के, राइट, वहाँ पर मॉडरेट सा वेदर होता है, ना तो बहुत ठंड रहती है और ना ही बहुत गर्मी रहती है। द प्लेसेस नियर द सी हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट विच इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। अगर हम लोग मुंबई का यहाँ पर वेदर देखें, या हम लोग कोलकाता का देखें, या हम लोग चेन्नई का वेदर देखें, दे ऑल आर नियर द सी लेवल। गुजरात का वेदर देखो, इज दैट क्लियर, द वेदर इज़ मॉडरेट क्लाइमेट। मॉडरेट क्लाइमेट क्यों रहता है बच्चे, क्योंकि इन समर्स द कूल सी ब्रीज दैट ब्लोज टुवर्ड्स द लैंड कीप्स द लैंड कूल। समर्स में जो कूल सी ब्रीज हमारे को लैंड से मिलती है, वो लैंड को क्या करती, जो सी से मिलती है वो लैंड को कूल कर देती है, राइट। एंड इन द विंटर्स द सी इज़ वार्मर, इज़ दैट क्लियर। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, सी जो होती है वो गर्म भी जल्दी होती है, इज़ दैट क्लियर। सो सी इज़ वार्मर। व्हेन द सी इज़ वार्मर, तो जो सी की वार्मथ होती है वो लैंड को क्या कर देती है, थोड़ी सी वार्म रखती है, राइट। So these are some of the factors that affect the climate of a place. बच्चे you should also remember बहुत सारे और भी factors हैं, like forest, types of soil that also affect the climate of a place. I hope this chapter is quite clear now. Now बच्चे just a very interesting fact. आप लोगों को पता है Africa lies near the equator and is the very hottest region, और वहाँ पर सारा साल गर्मी रहती है। बट ड्यू टू इट्स ग्रेट ऑल्टीट्यूड, माउंट किलिमंजारो ऑफ तंजानिया इन अफ्रीका इज स्नो क्लैड। नाउ जस्ट सी दिस पॉइंट कि अफ्रीका के अंदर ही दो प्लेसेस हैं, एक बहुत गर्म रहती है, वैसे तो अफ्रीका बहुत गर्म रहता है, लेकिन वन ऑफ द प्लेसेस इज ऑलवेज स्नो क्लैड, full with snow all the time. So this is only the climatic conditions of a place. I hope this chapter is quite clear now. So enjoy reading this chapter and enjoy learning. Thank you.